Let's continue with the new topic, that is inelastic collisions. Inelastic collision. पता बहुत numerical, हाँ? इकट्ठे करो. What happens in case of inelastic collision? Shabash. What happens to momentum? Momentum remains conserved throughout. And what about kinetic energy? Is it conserved? No. There is loss of kinetic energy. Kinetic energy is lost. So we cannot say initial kinetic energy is equal to, because energy is lost. Gaya problem? Problem hai ki aati hai? There is problem. Because we cannot use law of conservation of kinetic energy. We can use law of conservation of linear momentum. ठीक? Beyemo tat concepts kun. Before collision, object having mass m1 moving with velocity u1. Mass number 2 m2 moving with velocity u2. After collision, m1 acquires velocity v1, m2 acquires velocity v2. खबर बेटा समझ है वहाँ? We have to find what? v1 and v2. Beautifully done. I tell like beautifully written. Acha. How many variables are there? Kus v1 and v2. There are two variables. How many equations? Only one. Kus. Law of conservation of linear. Only one equation and two variables. You know? No problem is there. What is law of conservation of linear momentum? m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. ठीक बेटा? क्लियर ही होता है या चुन कहीं डाउट. दूसरी इक्वेशन, we cannot use law of conservation of kinetic because energy is lost. लेकिन हमारे पास एक दूसरी डेफिनेशन है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की. हम यहां से डेरिवेशन करेंगे. कहां से? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. लेकिन जो आंसर निकलेगा v1 एंड आंसर v2, उसमें EB होगा. कैसे? दूसरी इक्वेशन में E से लाऊंगा. व्हाट इज E? Relative velocity. Oh, very good. Relative velocity of separation divided by relative velocity of approach. Very good, very good. बोलिए भाई, relative velocity of separation किसके बराबर? v2 minus v1. Approach u1 minus u2. ठीक है भाई. क्रॉस मल्टीप्लाई. बोली भाई क्या आएगा? E को मल्टीप्लाई हो जाएगा u1 माइनस u2 से. किसके बराबर आएगा? v2 माइनस v1 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे. बोलिए भाई v2 किसके बराबर आएगा? E इंटू u1 माइनस u2 प्लस v1. यही आएगा. ऐसे ही हमने वो भी किया था. v2 का वैल्यू निकाला था. Then we substituted value of v2 in this equation. ये करे बच्चे क्या है? आसान ही होता. 5 चीज आसान क्या है? तो दब रीजन क्या चाहिए? अयो दा आसन क्या रीजन चाहिए? हाँ? क्या मासिक? अच्छा मास प्रमोशन. अच्छा ठीक. गया मास प्रमोशन. गवर्नमेंट तो नो स्कोप ऑफ मास प्रमोशन. कर चुके हैं.
पहले सब कर अच्छा द्रव V2, इस V2 को क्या करेंगे यहाँ पे सबस्टिट्यूट, सिर्फ इसमें भी V1 आएगा, यहाँ भी V1 कॉमन निकाल के आंसर। ठीक, अब मैं दो इक्वेशन सॉल्व नहीं करूंगा, दैट इज एक्सेस। ठीक, V2 यहाँ से निकलेगा, इसको यहाँ पे सबस्टिट्यूट, फिर दोनों में V1 आएगा एक साइड, बाकी यहाँ ट्रांसफर हुआ। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो जो करना था वो हमने किया इलास्टिक में। ठीक, यहाँ तक क्लियर, नोट डाउन कीजिए। इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D, in elastic collision in 1D, ठीक है। याद चाहिए बता सोरी बोर्ड से वहाँ अत जो जीर गो पे नई पे रिकॉर्ड कर इंद्रमिस बेचस आबिद सबन कर ओतर रिकॉर्ड में तमिस रिकॉर्डिंग बटन दबावन गोमुत मुझ सह करान तो मगर रिकॉर्ड गसान कहें क्लास अच्छा ना खुर वारे स्टूडेंट यम इत तिमन एटलीस्ट वातान बहुत दोहे अपलोड करान वेदर इज इट यूट्यूब और ऐप तम पे वो ऑनलाइन सिस्टम इज अ फेलड सिस्टम क्या समझ कुछ आए ये तो खुदा जमीन आसमान फर्क ऑनलाइन तो ऑफलाइन ये अगर कम ही पो मगर इंसान डिफरेंट फील क्लास रूम फील समझ आता है मोबाइल इति मैसेज इति रिप्लाई मिनिमाइज 10 मिनट गड़ पत 10 मिनट ना मज ऑनलाइन तो ठीक मगर पत ब्रो पे तम हाई क्लास तक पता UPSC IAS YAS प्रिपरेशन तम सा ठीक वनकस तुम पत्थर पेम सदी पर लिखा आपने इबारत लिखी कंसिडर two objects मिश्ना पता है तक न पर लिखनी consider two objects of masses consider two objects of masses m1 and m2 of masses m1 and m2 having initial velocities u1 and u2 having initial velocities क्या u1 and u2 full stop let the two bodies collide inelastically let the two bodies collide inelastically let the two bodies collide inelastically and after collision and after the two bodies acquire velocities v1 and v2 and after collision the two bodies acquire velocities v1 and v2 ठीक बेटा acquire velocities v1 and v2 नीचे applying law of conservation of linear momentum applying law of conservation of linear momentum applying law of conservation of linear momentum ये वाली इक्वेशन लिखिए m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2 ठीक है बेटा इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 ठीक है उसके बाद लिखिए फ्रॉम लिखिए सीधे E इज इक्वल टू ये हमने परसों भी लिखा E इज इक्वल टू क्या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फुल लिखना मैंने SCP लिखना फुल
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक, E is equal to V2 minus V1 divided by U1 minus U2। फिर क्रॉस में V2 minus V1 is equal to E टाइम्स क्या, U1 minus U2। उसके बाद ये वाला स्टेप, इसका नाम रखेंगे स्टेप नंबर, इक्वेशन नंबर 2। कैसे बैठा होता है? अगर बोर्ड एग्जाम में सीधे इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक, पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखना जो हमने पहले दिन लिखी, हाँ, फिर उसके बाद एनालिसिस। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा सीधे ऑन सॉल्विंग। ठीक, सबस्टिट्यूट सेकंड को, इसको फर्स्ट में सबस्टिट्यूट करना है। देखिए भाई आंसर क्या आएगा। नंबर 1 वेलोसिटी की इक्वेशन V1 आप मुझे बोलिए इलास्टिक की क्या थी। व्हाट इज इलास्टिक, जल्दी जल्दी, m1 माइनस m2। देखिए देखिए नजर रखिए, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस ट्वाइस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस। लेकिन ये किसकी थी, इलास्टिक। ये कौन सा कोलिजन, इन इलास्टिक। इसको तो ये आंसर नहीं आएगा, यही इक्वेशन थोड़ी बहुत मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक, देखिए भाई करना क्या है, हाफ मिनट से नजर, मुझे क्या निकालना है, V1, ये है ना इक्वेशन, ये है ना माइनस जो होती है टर्म m1 माइनस m2, इसको लिखना है E टाइम्स m2। खबर समझ आओ, हाफ मिनट पूछो, m1 माइनस E टाइम्स m2। ठीक, 2 नहीं लिखना है, 2 के बदले लिखना है 1 प्लस E, बाकी सेम है। बस ये वजह से चेंज साझा, कहाँ चेंज लाई आपने, यहाँ पे आपने क्या लिखा E, वहां पे E नहीं था, यहाँ पे क्या था 2 के बदले क्या लिखा। आप मुझे बोले V2 क्या आएगा, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 इंटू u2 प्लस ट्वाइस m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m1। बोलिए कहाँ चेंज, शाबाश शाबाश। यहाँ क्या आएगी E, सेकंड टर्म को E2 मिटाएंगे, यहाँ पे 1 प्लस E, सिंपल। आपको ये आंसर मगत करिए, सॉल्व खा लो, खाश कर दो। बोले आप लिखना ऑन, अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा ऑन सॉल्विंग 1 and 2। पहले डेफिनेशन इनइलास्टिक की, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, देन ऑन सॉल्विंग। इतना काफी है। ठीक है, ये इतना ही है, इनइलास्टिक कोलिजन इतना ही है बोर्ड एग्जाम के लिए। अभी कुछ केसेस और आएंगे इसमें, जेई नीट के लिए। करो ये नोट डाउन, अब लिखिए इंपॉर्टेंट केस। आप मुझे बोलिए व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इलास्टिक। ना इलास्टिक के लिए, शाबाश, इलास्टिक के लिए क्या है 1। आप 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या आएगा m1 माइनस m2, यहाँ पे 1 ट्वाइस है, द्राना वापस हुई आंसर, बाप रे जरूरत की। इंपॉर्टेंट केस में दिखाऊंगा जेई नीट के लिए कुछ। नंबर 1 लिखिए आप, टारगेट एट रेस्ट। टारगेट एट रेस्ट और इक्वल मासेस है, इक्वल मासेस एंड इक्वल मासेस। ठीक, 2 इक्वल मासेस कोलाइड हो रहे हैं एंड द टारगेट इज एट रेस्ट। हमने ऐसा वाला केस इलास्टिक में भी देखा था शायद। बोलिए भाई वहां पे क्या आया था, शाबाश, वही जता थी उसामत।
घूमो मुझे रात को ना equal masses. When two are having equal masses, they interchange their velocities. अगर टारगेट रेस्ट पे होगा तो पहली वाली बॉडी रेस्ट पे आएगी, दूसरी को वो वेलोसिटी में. But that happens in case of which collision? Elastic. ये कौन सा है? यहाँ पे नहीं होगा. क्लियर? समझ आए? It is different चीज, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है. आप मुझे बोलिए व्हाट इज V1? M1 minus E times M2 E divided by M1 plus M2. शाबाश. 1 plus E M2 U2 divided by M1 plus M2. टारगेट क्या थी? रेस्ट पे. कौन सा वाला है रेस्ट पे? शाबाश. U1 और U2? U2 नहीं, U1 का U2. व्हाट इज U1? प्रोजेक्टाइल. व्हाट इज U2? टारगेट. टारगेट क्या है? रेस्ट. टारगेट एट रेस्ट मीन्स U2 इक्वल टू 0. अच्छा, ये टर्म 0 बन जाएगी. U2 0, टर्म इज 0. बोलिए भाई V1 किसके बराबर आएगा? शाबाश शाबाश, बोलिए शाबाश. M1, लेकिन मासेस इक्वल है ना. M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M. नजर मारिए, यहाँ पे क्या आएगा? M माइनस E टाइम्स M. M माइनस E टाइम्स M डिवाइडेड बाय, शाबाश, डिवाइडेड बाय, शाबाश, 2M. वेरी गुड, 2M. एक्सलेंट. ऊपर M कॉमन आएगा ब्रैकेट में. 1 माइनस E डिवाइडेड बाई 2M. M गया, क्या आएगी? 1 माइनस E बाई 2. और इनफैक्ट U भी आएगा, U1. क्लियर से बेटा? ये Ivan तुम वो गड़बड़ समझो तो पता है तारनस क्या लग पता. अच्छा, आप मुझे बोलो V2 किसके बराबर आएगा? V2 किसके बराबर आएगा? M2 माइनस E टाइम्स M1 डिवाइडेड बाई M2 प्लस M1 इंटू U2. शाबाश. 1 प्लस E M1 U1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2. ये टर्म 0. क्यों? U2 0 है, टर्म ही 0 बन जाएगी बेटा. क्लियर? बोलिए भाई V2 किसके बराबर आएगा? 1 प्लस E M U1 बाई 2M. MM. बोलिए भाई V2 किसके बराबर आया? 1 प्लस E U1 बाई 2. सो हमें दो वेलोसिटीज मिली. किस किस की? 8 मिनट पे किस किस की? Velocity of projectile after collision, velocity of target after, और velocities of two bodies after collision. हमें दोनों मिली. ठीक, क्या आप इनका रेशियो निकाल सकते हो? यस. क्या आप निकाल सकते हो V1 by V2? यस. व्हाट इज V1? शाबाश. 1 माइनस E बाई 2 U1. नीचे 1 प्लस E बाई 2 U1. U1 2 2 कैंसल. बोलिए भाई V1 बाई V2 1 माइनस E बाई 1 प्लस C. आप ऑब्जेक्टिव टाइप बुक निकाल सकते हो. आप देखोगे कितनी बार ये क्वेश्चन आया है. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड न्यूमरस टाइम्स. तैर वालेकुम सलाम. वन जैसे तुझे ठीक पड़ा असल पट बगारस की प्रॉब्लम ठीक. बहुत वगैरह क्लास में सपद वन तो कर तमिस कॉल कहें. This question has been asked numerous times in entrance examination, various competitive entrances. The data. The two bodies of equal masses undergo inelastic collision. What is the ratio of velocities after collision if coefficient of restitution is E? क्या है? 1 minus E divided by 1 plus C. It is the ratio. इस तरह से क्वेश्चन आया है. ठीक है? लेकिन ये V1 बाई V2 आपको 1 माइनस E बाई 1 प्लस E मिला. लेकिन कब? कंडीशन है ना, 2 कंडीशन. मैन
दो कंडीशन, व्हेन टारगेट इज एट रेस्ट और masses are equal. Number 1 target at rest, number 2 mass is equal. तब भी आएगा 1 minus e by 1 plus c. कल भी हमें एक आंसर इसी जैसा आया, 1 minus a by 1 plus e. याद है? ना तश नहीं याद, वो प्याना पाती यार, माँ बामरे मिटावा भैया, यह छुना बोर्ड खतर कह इंपॉर्टेंट केस, दिस नॉट फॉर बोर्ड एग्जाम, इट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस. मिटावा देखिए भाई, अब मैं आपको बोलूंगा, आप कैलकुलेट करो लॉस इन एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी लॉस हुई है? क्या काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई? यस. कौन सा वाला कोलिजन? इन इलास्टिक. व्हाट हैपेंस इन इलास्टिक कोलिजन? देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. वो लॉस मुझे कैलकुलेट करना है. व्हाट इज लॉस इन एनर्जी इक्वल टू? शाबाश बोलिए भाई. इनिशियल एनर्जी माइनस, लेकिन बॉडी की या सिस्टम की? सिस्टम की. डेल्टा के लिखेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम. यहां तक क्लियर? व्हाट इज इनिशियल एनर्जी? 1 मिनट. व्हाट इज इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम? शाबाश. इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बोलिए, हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर. नहीं इनिशियल माइनस फाइनल, हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस माइनस का हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर. ये गई इनिशियल, ये फाइनल, बीच में माइनस. ये तो लॉस. v1 तो लेकिन वेरिएबल है और v2 भी वेरिएबल, कहां से लाओगे? फॉर्मूला निकाली ना अभी v1 की, m1 m2 m1 माइनस e टाइम्स m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 u1 1 प्लस e m2 u2 बाय m1 प्लस m2. करना भाई. v1 के लिए हमने सेपरेट फार्मूला की, v2 के लिए सेपरेट फार्मूला की. वो सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको आंसर मिलेगा. अगर आप ज़्यादा जल्दी करना चाहते हो, आपको ये सॉल्व करके निकलेगा, हाफ ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर 1 प्लस e स्क्वायर. ये आपको आंसर आएगा. 1 माइनस ई स्क्वायर, इनफैक्ट 1 माइनस ए. ये आपको आंसर आएगा. ठीक. इस पर जो याद हो याद रोजाना. अच्छा इत पे ज्यादा ईजी है, तो तुम ये जबला क्या तरह याद, इस तरह से रखो. इस पर थोड़ा साल पाना ते नजर. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? हाफ ऑफ mv स्क्वायर. सिंपल फार्मूला, जनरल फार्मूला. उस जैसी फार्मूला हम बनाएंगे इसको याद रखने के लिए, चुना तिल तो रोज पर याद, चुना. बोले सर, व्हाट इज जनरल फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? हाफ ऑफ mv स्क्वायर. m के बदले क्या? म्यू. म्यू को रिड्यूस्ड मास, क्या को रिड्यूस, हाफ ऑफ म्यू. m ये रखिए. ये क्या है? वेलोसिटी. हाफ ऑफ mv स्क्वायर. तो सुन कजन ब्रदर तो थी हाफ ऑफ m. अच्छा मैं लिखूंगा इसको mr. हाँ mr VRC साहब. हाफ ऑफ
mr v r हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ ऑफ एम आर वी आर स्क्वायर, मगर ये थी एक्स्ट्रा क्या 1 माइनस ई स्क्वायर, रोदा याद हाफ ऑफ एम आर वी आर स्क्वायर, पता याद रोजन कर। व्हाट इज एम आर? इसको कहते हैं रिड्यूस्ड मास। क्या एम आर होता है बराबर m1 m2 बाई m1 प्लस m2। रेजिस्टेंस इन पैरेलल आपने सुना है, रेजिस्टेंस 10th क्लास में, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होती है तो आर इफेक्टिव इसके बराबर आता है R1 R2 बाई R1 प्लस R2, याद है? इनफैक्ट आपने इस तरह से पढ़ा है 1 बाई R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, फिर सॉल्व करके ये निकलता है। इसको कहते हैं रिड्यूसर। अगर मास होगा, मास को क्या आएगा m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस, इसी को कहते हैं रिड्यूस्ड मास। व्हाट इज वी आर? रिलेटिव वेलोसिटी। बोलिए भाई रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर है? u1 माइनस u2 आना बराबर उतराते वैल्यू तुझ फार्मूला नहीं रहा वापस ही। व्हाट इज लॉस इन एनर्जी? जनरल फार्मूला हाफ ऑफ एम आर वी आर ब्रैकेट में सिंपल हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। व्हाट इज एम? ये तो रिड्यूस्ड मास किसके बराबर होता है? m1 m2 m1 प्लस m2। व्हाट इज वी आर? रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर? यू पत्र ही वाला को तुझ वापस नहीं रही फार्मूला एम आर के बदले m1 m2 बाई m1 प्लस m2, वी आर के बदले किसके बराबर है? एक बार फिर हाफ ऑफ एम आर वी आर स्क्वायर 1 माइनस ई। व्हाट इज एम आर? रिड्यूस्ड मास किसके बराबर? m1 m2 बाई m1 प्लस m2। व्हाट इज वी आर? रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर? u1 माइनस, इन स्क्वायर कर लिखिए मत u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, नो इट इज u1 माइनस u2 होल स्क्वायर ब्रैकेट में 1 1। अच्छा आप मुझे बोलिए व्हाट इज लॉस ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन? वेरी गुड शाबाश, इट इज 0। क्यों? वहां पे जितनी इनिशियल उतनी फाइनल, देयर इज नो लॉस ऑफ का एनर्जी। आप देखिए ये फॉर्मूला यूज कीजिए इलास्टिक को, इलास्टिक कोलिजन के लिए ई कितना 1, सब्स्टिट्यूट कीजिए 1 माइनस 1 0, टर्म 0, लॉस एनर्जी 0। खबर समझ आवा? ये हो गए दो कोलिजन। कौन कौन से हमने पढ़ा? इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। तीसरा लिखिए परफेक्टली इनइलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन। तीसरा परफेक्टली इन इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन। वन डायमेंशन के तीनों कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा। क्या ये उतारा? अरे लिखियो लॉस इन एनर्जी, ये फॉर्मूला तो फॉर्मूला जल्दी ये फॉर्मूला लिखियो। हाँ, लॉस इन एनर्जी की फॉर्मूला खबर समझू इमाम खुदा रचन क्या ना पोजी देवी खुदा रचन इमाम चो क्या समझ मतलब कल पेटी माचो गस अदा ना मन 6-7 month गैप तो ये ना मंडी हुई थी मिटावा भी है ना बताओ मुझे था भाई थी माँ बाप बेटे परफेक्टली इन इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन। देखिए जो आपने इन इलास्टिक पढ़ा, इन इलास्टिक यही रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए। ई को सब्स्टिट्यूट करना है 0। व्हाट इज ई फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन? 0। परफेक्टली इलास्टिक 1, परफेक्टली इनइलास्टिक 0। जो भी आपको रिजल्ट निकले ई का वैल्यू 0 आपको आंसर। आपको इसको सॉल्व करो, वो सॉल्व करेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये ऑब्जेक्ट जिसका मास, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 टकराया m2 से जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u2, बोथ बॉडी स्टिक टुगेदर
एंड मूव विथ सेम वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी का नाम कॉमन वेलोसिटी। ये ए की भी वेलोसिटी है, बी की भी वेलोसिटी है। क्यों? दे आर मूविंग टुगेदर, एक ही वेलोसिटी से आगे चल रहे हैं। So it is VC is velocity of body A as well as velocity of body B, दोनों की सेम वेलोसिटी है, तभी तो परफेक्टली इनइलास्टिक है। ठीक, चलिए भाई, कैन वी यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? नो। व्हाई? बिकॉज देयर इज मैक्सिमम लॉ, इनफैक्ट मैक्सिमम लॉस। कैन वी यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? यस, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, क्योंकि अब तो टोटल मास है। टोटल मास कितना? m1 प्लस m2 इंटू vc डिवाइड लाइए। बोलिए भाई vc किसके बराबर? m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस, ये आपको मिला कौन सी वेलोसिटी? मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में एक न्यूमेरिकल दिखाया था, पर्सन ऑन ट्रॉली, याद है? लेकिन उसमें हमने एक नेगेटिव लिया। क्यों? क्योंकि ये जो सेकंड बॉडी थी वो आ रही थी अपोजिट, ऑब्वियसली वो तो फिर माइनस लेना पड़ेगा। ठीक, व्हाट इज VC? कॉमन वेलोसिटी। क्या ये ए की वेलोसिटी है? यस, ए की भी वेलोसिटी है, बी की भी, दोनों बॉडीज की। अगर ये बोलेगा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, यही आंसर, वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, यही आंसर, कॉमन वेलोसिटी, यही आंसर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक। कैन यू कैलकुलेट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी? यस, इनफैक्ट एक तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में ई का वैल्यू, वेरी गुड, ई का वैल्यू जीरो, जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे, ई का वैल्यू परफेक्टली इनइलास्टिक बनेगा। लड़ाई झगड़ा हुआ रही, बाबू कैलकुलेट करो। आप क्या बोलोगे? लॉस इन एनर्जी किसके बराबर? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल का प्रपोज था। How much is initial? Half of m1 u1 plus half of m2 u2 square माइनस फाइनल, फाइनल किसके बराबर? हाफ ऑफ m1 प्लस m2 इंटू VC स्क्वायर। तो समझी? तो फाइनल जो ना, फाइनल मास कितना? m1 प्लस m2, फाइनल वेलोसिटी VC। यही VC का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर पाओगे? यस, क्या? m1 u1 m2 u2 चला सॉल्व करके आपको क्या निकलेगा? आप मुझे बोलिए इस हिसाब से। हाफ ऑफ, जल्दी जल्दी दे पियो, जल्दी जल्दी दे पियो, सॉल्व करके क्या निकलेगा? जल्दी जल्दी बोलिए, बोलिए भाई, जल्दी जल्दी बोलिए, सॉल्व करके क्या मिलेगा? शाबाश, हाफ ऑफ, वेरी गुड। m1 m2 भाई m1 प्लस m2, फिर u1 माइनस u2 होल स्क्वायर, इतना ही आएगा। क्यों? ई के बदले जीरो। दिस इज द लॉस इन एनर्जी। ठीक, ये आपका कोलिजन इन वन डायमेंशनल, तीनों टाइप्स कंप्लीट हुआ। ठीक, अब टू डायमेंशनल वाले कोलिजन है, वहां पे सिर्फ एक ही एक इलास्टिक, इवन परफेक्टली इन इलास्टिक भी टू डायमेंशन में, उसमें एम्स एंट्रेंस या नीट एंट्रेंस उसमें क्वेश्चन आते। ठीक, इन इलास्टिक इन 2D वो नहीं आता। एक इलास्टिक इन 2D, दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक इन 2D नहीं आता है। ठीक, सो व्हेन इज दैट डिफिकल्ट? ये को कोलिजन का अख फेज थे कंप्लीट। आप क्वेश्चंस करें याऊं ट्याऊं, ये हो गया ऑलमोस्ट। इसके बाद में डायरेक्ट ऑसिलेशन एंड वेव स्टार्ट करूंगा। ठीक, लॉन्ग चार बहुत क्वेश्चन आते हैं जेईई नीट में उसमें, लेकिन वो जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगा। यम बच्चे यथ पे वीडियोजन मज वुछा ऑसिलेशन एंड वेव जो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं। यहाँ पे आप एक तो क्लास है, क्लास के ऐप है, हमारी ऐप है ना, ऐप पे भी मैं चढ़ाऊंगा लेकिन यूट्यूब पे नहीं। ठीक है,
वन दप रीजन क्या पर्सनल रीजन ये कंटेंट थेफ्ट गसान कंटेंट थेफ्ट जो मैं पढ़ाता हूँ फिर तो इस वजह से मैं उसको हिडन रखूंगा। आपको पहुंचाएंगे। ऐप चल रही है उसमें अपलोड होगा यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगा। पॉज करो मंजर से